Yeah. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. How are you, students? Good afternoon, Abhishek. Good afternoon, Manthan. Good afternoon, Mukesh. How are you, students? Good afternoon, House. How are you? How was your weekend? Okay. Good afternoon. So, guys, shall we start the class? Huh? Okay. So, guys, in the last class, we were discussing the properties, right? So, all the properties we have covered in the last classes. So in today's class, what we are going to do is we are going to mainly focus on the numericals. Okay. So in the last class also at the end of the classes, we started solving some problems, right? So we will continue with that. But before that, first we will see summation of series. Okay. समेशन ऑफ सीरीज देखेंगे एंड प्रॉब्लम्स. एक समेशन ऑफ सीरीज हमने देखा था जब हम एपीजीपी पढ़ रहे थे, right? But this summation of series is for the inverse trigonometric function and mainly involving tan inverse functions. And then after that, we will move on to the problems. Okay. So let's directly jump into the summation of series. So best way to uh, seeing this study the summation of series is by the questions. So let's start with the question. So question 1. We have to sum this series. देखो कैसी सीरीज है, tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/8 plus tan inverse 1/18 plus tan inverse 1/32 up to n terms. ऐसे सम होता जा रहा है up to n terms, राइट? तो इसका हमें सम बताना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टेल मी कैसे करेंगे. So whenever we see there is a fixed pattern in the summation of the inverse series, first what you have to do, you have to find the nth term. Okay, nth term निकालना है. So tell me what is first term क्या है 1/2, second term क्या है 1/8. So what is 1/2? 1/2 is nothing but 2 into 1 square. 1/8 is nothing but means 8 is nothing but 2 into 2 square. थर्ड टर्म आया तो 18 क्या होता है 2 into 3 square. फोर्थ टर्म आया तो 32 कितना होता है 2 into 16 square. Right? So can anybody tell me? It's very easy now. What would be the Tn? Tan inverse 1 upon 2n square. Yes or no? Tan inverse 1 upon 2n square. Right? Okay. So what is the summation of series? Summation of series is nothing but first term plus second term plus third term like this up to nth term. यही तो है summation of series, which is nothing but summation of Tn, where n is varying from 1 to n. Means summation of tan inverse 1 upon 2n square, where n is varying from 1 to n. Okay. So we have to find this sum. तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली तो कोई तरीका है नहीं. So we have to use the manipulation. देखो 1 upon 2n square. एक बात मेरी हमेशा नोट करना, whenever you are finding the summation of the inverse trigonometric function, mainly tan inverse, जब कभी भी आपको क्वेश्चन गिवन हो तो सब समेशन ऑफ सीरीज का उसको tan inverse में कन्वर्ट करो. ओके. सो इन द tan inverse always try to create, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ always, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए? always try to create 1 in denominator. ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एक 1 तो होना चाहिए डिनोमिनेटर में. अभी 2n स्क्वायर है तो देखो कैसे हम बना सकते हैं 1. मींस 1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो जीवा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. तो देखो 1 प्लस आ रहा है ना, 1 आ रहा है हमेशा. सो फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. तो इसलिए हमें 1 क्रिएट करने की कोशिश करनी होती है हमेशा. तो कैसे करेंगे क्रिएट 1? देखो एक तरीका क्या है, सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन. सबसे पहले इसको लिख सकते हैं. नाउ लेट्स कंसीडर द nth टर्म. nth टर्म में मैनिपुलेशन करते हैं, फिर समेशन बाद में कर देंगे. ओके गाइस, टेल मी Tn कितना है? 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 2n स्क्वायर. यू कैन राइट दिस एज tan इनवर्स 4 अपॉन 4, 2 से मल्टीप्लाई करो तो tan इनवर्स 2 अपॉन 4n स्क्वायर. यस और नो? इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2 अपॉन
4n square. Clear? So now I have to create 1 in the denominator. So you can do like this, tan inverse 2 upon 1 plus 4n square. इस 1 को कंपनसेट करने के लिए 8 माइनस 1 करना पड़ेगा. अभी तक सब क्लियर है? देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1 अपॉन 2n स्क्वायर ही लिखा हुआ है. ओके, सो फाइनली tn कितना आया गाइस? tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये क्या लिखा हुआ है? 2n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1. क्लियर है? सबको क्लियर है ना? तो फाइनली कितना आया? tn आ गया tan इनवर्स 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1. दिख रहा है? तो देखो क्या बन रहा है ये? tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई. तो कितना है ये? ये तो tan इनवर्स x मीन्स tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स y मीन्स tan इनवर्स 2n माइनस 1 लिखा हुआ है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? तो देखो tn को मैंने ब्रेक कर लिया इन द डिफरेंस ऑफ 2 tan, है ना? tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1. And the best part is that if I replace n with n plus 1 here, I will get this term. So it means now if I substitute n equal to 1, 2, 3, 4, तो कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल होगी. ओके, देखो एक बार दोबारा tn को लिख लेते हैं. यहाँ पे tn कितना आ गया जल्दी से बताओ? tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1. राइट राइट. सो नाउ व्हाट इज t1? t1 कितना है? n को 1 डालो यहाँ पे, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1. t2 कितना है? n को 2 डालो यहाँ पे, तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स. अब देखो यहाँ पे मैंने t को n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो tan इनवर्स 4 माइनस 1 tan इनवर्स 3. देन t3 कितना होगा? n सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 3 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5. राइट. देन लाइक दैट अप टू tn कितना आएगा गाइस? tn कितना आएगा? tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1. यस और नो? इज दैट क्लियर? सो नाउ ऐड कर दो, add this all because we have to find sum which is t1 plus t2 plus t3 up to tn. So we have to add these terms. So when you add these terms, देखो tan inverse 3 tan inverse 3 cancel out, tan inverse 5 tan inverse 5 cancel out, tan inverse 7 से यहाँ से ऐसे यहाँ से, and then finally this will cancel out with tan inverse 2n minus 1. Is that clear? समझ में आ रहा है? The cancellation is started from the left to right. So first this tan inverse 3 will cancel out tan inverse 3, then this 5 will cancel out this 5, then tan inverse 7 will cancel out tan inverse 7 यहाँ पे. फाइनली ऐसे करते करते यहाँ पे लिखा हुआ tan inverse 2n minus 1 that cancel out with tan inverse 2n minus 1 on the right side. Clear? तो फाइनली t1 plus t2 plus t3 से लेके tn कितना आ गया? ये कितना आ गया? दिस इज नथिंग बट tan inverse 2n plus 1 माइनस tan इनवर्स 1. दैट्स ऑल. यही आंसर है. सो फाइनली सम कितना आ गया? सम इज नथिंग बट tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1. सो दैट इज द आंसर. इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो. tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको समेशन भी डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. इज दैट क्लियर? This is the sum of the n terms. कितने लोगों को समझ में आया? Quickly let me know in the chat box, guys. Is that clear? This question is clear. Anybody having any kind of doubt? Okay. So ये तो guys अभी क्वेश्चन ने up to n terms का सम बोला, वो हम निकाल चुके हैं. But if we have to find the sum of infinite term, so sum अब क्या कर रहा हूं मैं? इसको just extend कर रहा हूं. Okay. So for summation of infinite terms,
इनफाइनाइट टर्म्स। क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यस और नो? n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो s कितना आएगा फाइनली? s विल बी नथिंग बट n को इंफिनिटी टेंड कराओ, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यस और नो? तो देखो कितना आएगा, tan इनवर्स पाई, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस पाई बाय 4, ये कितना होता है? पाई बाय 2, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 4। तो ये आंसर हो गया अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम बोलता है। यस, वेरी गुड मंथन, वेरी गुड। इज दैट क्लियर गाइस? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? स्वास्तिक, हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दोबारा देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट डाउन द nth टर्म tn इनवर्स 1/2n²। फिर मैंने क्या बोला कि हमेशा ट्राई टू क्रिएट वन इन द डिनोमिनेटर। देखो इसको हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे? इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई nth टर्म इन द डिफरेंस ऑफ टू tan इनवर्स टर्म, है ना? If I'm able to express my nth term in the difference of two tan inverse term, then only I can able to sum this up. Okay, because previous term will be cancelling with the next term. Okay, तो सबसे पहले क्या किया, 2n² दिखा मुझे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड। Okay, am I audible now, Swastik? Okay, so Swastik, so what I was saying कि I have represented it in the 2/1 plus 2n minus 1 into 2n plus 1. So इसको डिफरेंस के टर्म्स में लिख लिया। Okay, now it is nothing but tan inverse x minus y upon 1 plus xy, so which is nothing but tan inverse x minus tan inverse y। तो बस ये nth टर्म आया है, जब now just directly substitute 1 2 3 and you will find that these terms are cancelling। is that clear now? Any doubt guys? अभी तक कोई डाउट है? क्लियर है स्वास्तिक? Shall I proceed further? Okay, so okay, I'm giving you guys 1 minute. Everybody, you have 1 minute, attempt this question quickly and let me know the answer quickly guys, quickly let me know the answer guys. You have only 1 minute. Let me know the answer in the chat box, everyone. Solve the question. You guys don't have only 1 minute guys. इसको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। Try to write down the general term and then think about how I can express it in the difference of two tan inverse term. Quickly let me know the answer. कितना आंसर आएगा?
बताओ जल्दी से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? अभिषेक, भरत, प्रवीण, सौभाग्य, स्वस्तिक, मंथन, प्रमोद, एवरीवन, राम, टेल मी द आंसर क्विकली. Tell me what is the nth term first of all. Okay, tell me what is the nth term. nth term तो निकाला होगा ना. Tell me कितना आ रहा है. ओके देखो, फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, 2/2 + 1² + 1⁴. सेकेंड टर्म इज 4/2 + 2² + 2⁴. देन थर्ड टर्म इज 6, राइट. तो सबसे पहले nth टर्म क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स. देखो फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में कितना आया, 2 4 6, तो न्यूमरेटर में 2n लिखा हुआ है. यस नो. डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 2 तो हर जगह है, तो 2 प्लस, if there is first term then 1² + 1⁴. If it is a second term then 2² + 2⁴. If it is a third term then 3² + 3⁴. Yes or no? Are you getting my point? So for nth term क्या होगा, n² + n⁴. So this is the nth term. कितने लोगों को बात समझ में आ गई? nth term समझ में आया? Is that clear guys? nth term निकल गया. Okay. So after that I have told you that always try to create 1 in the denominator. तो यहाँ पे तो 2 है, तो एक 1 को ले लो इसमें से. So what will happen? So this is nothing but 1 plus, ये क्या लिखा हुआ है, n⁴ plus n² plus 1. Okay, इसको ऐसे लिख दिया. Now what we can do is, देखो, if instead of n², if we have 2n², then n⁴ plus 2n² plus 1, ये क्या होता है, n² plus 1 का होल स्क्वायर. यस और नो? सो what we have to do, you can add n² and subtract n² in the denominator. तो कितना बनेगा ये, n⁴ plus 2n² plus 1. So I have added 1 extra n² to compensate that, subtract 1 n². That's all. क्लियर है अभी तक सबको? Is there anyone who has any kind of doubt till now? अभी तक सबको सब समझ में आ रहा है? Okay. So now देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2n/1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, n⁴ plus 2n² plus 1, which is nothing but n² plus 1 whole square minus n². तो देखो 2n/1 प्लस a² minus b² की जगह a minus b plus a minus b into a plus b. So which is nothing but tan inverse 2n/1 plus n² plus 1 plus n² plus 1 minus n. Okay, is that clear? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो ये सब हम tn लिख रहे हैं अभी तक, ये अभी तक हम tn लिख रहे हैं. ओके, ओनली tn. तो फाइनली tn कितना आ गया, tan इनवर्स, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड. tan इनवर्स, व्हाट इज दिस रिटर्न, 2n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इट कैन बी रिटर्न एज tan² plus n plus 1 minus n² minus n plus 1 divided by 1 plus n² plus n plus 1 into n² minus n plus 1. That's it. क्लियर है? क्या बना ये फाइनली, it is nothing but tan inverse x minus y upon 1 plus xy. So directly we can write down as Tn is equal to tan inverse n² plus n plus 1 minus tan inverse n² minus n plus 1. Is that clear? देखो कैसे हमने tan inverse nth term को we have break into the 2 tan inverse term. Okay, I hope so far it is clear. So guys, sum क्या है, now just try to substitute n equal to 1 2 3. Okay, so सबसे पहले मैंने दोबारा लिख लिया tn. tn होता है tan inverse n² plus n plus 1 minus tan inverse n² minus n plus 1. Okay, so what is term 1? Substitute n equal to 1. So tan inverse 3
माइनस टेन इनवर्स वन। एन को वन डालो यहाँ पे, वन प्लस वन प्लस वन, वन माइनस वन प्लस वन। टी को टू डालो, एन को टू डालो, सॉरी। So here you will get 2 raised to the power 2 plus 2 plus 1. So 4 plus 2 plus 1 which is 7 minus यहाँ पे n को 2 डालो, 4 plus 1 5 minus 2 3, tan inverse 3. Then substitute n equal to 3. What we will get? n equal to 3 डालो, 9 plus 1 10 plus 3 13 minus tan inverse यहाँ पे कितना आएगा 7. क्लियर है? ऐसे करते करते nth टर्म क्या आएगा? tan इनवर्स n को n डालो, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस वन। क्लियर है? तो देखो ऐड कर दो, अब ऐड करेंगे, ऐड करो, ऐड कितना आएगा? tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 कटा, tan इनवर्स 7 इज कैंसिलिंग विद tan इनवर्स 7, 13 दिस विद दिस एंड लाइक दैट। तो tan इनवर्स माइनस n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो फाइनली सम कितना आया? समेशन इज नथिंग बट tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस tan इनवर्स वन। So that is the answer. This is the answer. I hope this is clear to each and everyone. Any doubt guys? तो summation of series समझ में आया कि if there is a series of tan inverse, the summation of tan inverse, how we have to convert it into the sum, right? So try to create the nth term in the difference of two tan inverse term, and then try to add by substituting n equal to 1 2 3, and we will see that terms are getting cancelled out. Yes or no? यही देखा था ना हमने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में भी ऐसे ही किया था। Is that clear guys? कितने लोगों को अभी तक समझ में आ गया? Is there anyone who have any kind of doubt? Tell me. Ram, Swastik, Sobhagya, Manthan, Praveen, Gyan, Abhishek, everyone. No, Manthan ऐसा नहीं है। You cannot generalize. Sometimes it can happen ना कि no. Please don't try to generalize that. So for all tan inverse series, the summation will be first nth term का first term and first term का last term. No, summation देखो series तो ऐसे from right to left भी cancel हो सकती है. Yes or no? Series can be cancelled from right to left also. Okay, it will depend upon question to question. Okay, प्लीज रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। ओके, क्वेश्चन में ऐसे नहीं होता। ओके, दिस इज जस्ट कोइंसिडेंस कि ये हो गया। यस 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 एग्जैक्टली, ओनली दीज टू वर्क लाइक दिस। ओके, चलो ये समझ में आ गया। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। दिस क्वेश्चन, ओके, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट गाइस, यू हैव 1 मिनट। तो अब ऐसे ही करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी, ऑल द कंसेप्ट ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। So now we will do the question answer. I will give you 1 minute to attempt the question and then I will discuss. So let everybody please attempt this question. Everyone, you have 1 minute guys. Question क्या बोल रहा है? Let f of x is equal to cot inverse x square plus 4x plus alpha square minus alpha be a function defined from r to 0 to pi by 2, 0 open से pi by 2 close. Then find the complete set of real values of alpha for which f of x is onto. That is the question. Okay, everyone, you have 1 minute. Everyone, please attempt this question and let me know the answer in the chat box. What is the value of alpha? Quickly attempt. You have to find the values of alpha such that this function becomes onto. Onto function क्या होता है? Where f of x set, where onto function is a function where range is equal to codomain. Everybody, attempt this question. Let me know the answer in the chat box. Anybody got the answer?
एनीवन? बोलो गाइस, मंथन, guys, everyone tell me now. Should I solve it then? Okay. 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 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले इस पे स्टार मार्क कर लो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लो. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा. ओके, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to 0 से pi by 2 close. Means codomain of this function is 0 open से pi by 2 close. That is the codomain. Now, if function to be a onto function, now it's purely a conceptual question. Okay, calculation कुछ है नहीं इसमें, अभी पता चलेगा. For f of x to be a onto function, range is equal to codomain, है ना. Range is equal to codomain. Yes or no? It implies this f of x, the range of f of x कितना होना चाहिए? Range of f of x होना चाहिए 0 से pi by 2 close. Is that clear? ये तो समझ में आ रहा है ना, because function क्या है? On to है ना. Okay, now tell me guys, everybody tell me, it is a what? Tell me first of all, cot inverse x belonging to 0 से pi by 2 close. If cot inverse elephant is belonging to 0 से pi by 2 close, तो x कहां से कहां तक रेंज वेरी करेगा? कोई बता सकता है मुझे? कॉट इनवर्स का ग्राफ आता है ना बनाना, क्लास में बताया है मैंने. कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप का ग्राफ होता है कॉट इनवर्स का. दिस इज pi by 2, है ना. This is x-axis and this is pi. This is y-axis. This is 0. So if cot inverse is from 0 से pi by 2, means here 0 से pi by 2, right? So it implies x कितना होना चाहिए? Means cot inverse elephant, where cot inverse elephant is between 0 से pi by 2. So it implies x should be greater than equal to 0. Yes or no? अगर x greater than equal to 0 है, then only cot inverse x will be in 0 open से pi by 2 close. Yes or no? Tell me quickly in the chat box. Do you agree with me or not? Clear है सबको? Anybody having any kind of doubt so far? Okay. देखो मैंने चेक किया कि if cot inverse x is between 0 open से pi by 2 close, then what are the values of x for which that happens? तो check किया, x greater than equal to 0. So it implies cot inverse elephant is belonging to 0 से pi by 2 close, then elephant greater than equal to 0. So hence you can say that directly for cot inverse हमें फंक्शन क्या गिवन था? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू 0 से pi by 2, 0 opens pi by 2 close. So it implies x square plus 4x plus alpha square minus alpha should be greater than equal to 0. Do you agree with me or not? Agree with me or not? Yes or no? It should be greater than equal to 0. Okay. Now tell me guys, when a quadratic expression is greater than equal to 0, given that a is greater than 0. दिख रहा है ना? This quadratic expression का a कितना है? Positive है. So it means this will only happen if the d of the quadratic equation is 0. Then only this y will be greater than equal to 0. For a quadratic equation to be a greater than equal to 0, conditions याद है ना जो conditions कराई थी quadratic equation में? If quadratic equation greater than equal to 0 कब होगा? When d is equal to 0. Yes or no? So it implies d should be 0. d 0 ही होगा तभी ये possible है, क्योंकि a is greater than 0. दिख रहा है? a is greater than 0. So it means for this quadratic equation to be greater than equal to 0, so d should be 0. That's all.
तो बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी जीरो करना है। तो डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी जीरो। तो इट इंप्लाइज बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4a। सी कितना है, कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इट शुड बी जीरो। कितना आ गया फाइनली, 16 माइनस 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। टेक दी 4 कॉमन, तो 4 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो इट इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4, तो प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो अल्फा कितना आ गया, 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2। यही आंसर है। दिस इज द आंसर। So for this value of alpha, for this values of alpha, the given function will become onto. Is that clear? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? It's a very very important question, highly conceptual question you can say. Okay, it's a you can say advanced level question है. Okay, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ओनली कंसेप्ट था। ओके, इनवर्स और फंक्शन के कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। ओके, तो ऐसे कोरिलेट करना ही पड़ेगा आपको। ओके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप कोरिलेट कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को। हाँ स्वास्तिक, मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, गिवन फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है शुड बिकम्स ऑन टू। सो इफ दिस फंक्शन टू बी ऑन टू, then range should be equal to codomain, and in the question it is already given that range, the function is defined from r to 0 open say pi by 2 close. Okay, so it means for this function to be on to, range of the function should be 0 open to pi by 2 close. Okay, and we can see that it is a function of cot inverse. So when a cot inverse function is between 0 say pi by 2, only when argument inside the cot inverse function is greater than equal to 0, then only the value of the cot inverse function is between 0 open say pi by 2 close. So it means for this function to be between 0 open say pi by 2 close, in argument inside this function x square plus 4x plus alpha square minus alpha should be greater than equal to 0. And when a quadratic equation is greater than or equal to 0, only when d is equal to 0. बिकॉज ए तो पॉजिटिव है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी ग्रेटर देन जीरो किया और अल्फा आ गया। इज दैट क्लियर स्वास्तिक? समझ में आया? कितने लोगों को अब क्लियर है? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, shall I proceed further then? Shall I proceed further? Okay. Let's solve one more question again. Find the number of solution of equation. Find the number of solution of the equation. Equation मैं लिख देता हूँ। So equation क्या है? Find the number of solution of this equation. Equation क्या है? 2 into sin inverse x whole square minus sin inverse x minus 6 is equal to 0. This is the equation. So you have to find the number of solution for this equation. That's it. That is the question. Okay, again everyone solve it. You have only 1 minute guys. Solve it quickly and let me know the answer in the chat box. Everybody solve it quickly. Let me know the answer in the chat box. Everyone tell me the answer. You have to just find the solution of this quadratic expression. That's all. Quadratic नहीं है ये, it is the quadratic polynomial नहीं है, ये तो सबको पता है ना। This is not a quadratic polynomial. It is a quadratic in sin inverse. Okay, कई बार ये भी लोगों को confusion हो जाता है कि it's a quadratic polynomial. No, highest degree 2 तो है, but function देखो ना sin inverse का है, quadratic कैसे हो जाएगा? Okay, आंसर बताओ पहले, कितना आंसर है? क्वेश्चन इज वेरी इजी गाइस, ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। फैक्टराइजेशन कर लो और आंसर आ गया। दैट्स ऑल। टेल मी द आंसर क्विकली एवरीवन।
व्हाट इज द आंसर? मंथन, स्वास्तिक, हर्ष, guys let me know quickly. Bharat, Pramod, Ram, Praveen, Gyan, everyone. Abhishek, what is the answer? Okay, so everybody focus here. तो देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इन साइन इनवर्स. ओके, तो सबसे पहले क्या करो, लेट साइन इनवर्स को टी मान लो, क्योंकि हर जगह साइन इनवर्स दिख रहा है, बार बार साइन इनवर्स लिखने से अच्छा टी लिख लेते हैं उसको, राइट. तो जैसे ही मैंने साइन इनवर्स को टी लिखा, तो टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ टी. Range of t is nothing but range of sine inverse, which is -1 to 1. So it means t should be between -1 to 1, है ना. जो भी वैल्यूज आएंगी वो -1 to 1 ही होनी चाहिए. ओके ओके, नाउ गाइस टेल मी फाइनली कितना बना, 2t² -t -6 इज इक्वल टू 0. यही बना ना. फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करो. 2t² -4t प्लस 3t -6 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन कर रहा हूं सिर्फ. तो 2t कॉमन ले लो यहाँ से, तो t -2, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, t -2 इज इक्वल टू 0. तो फाइनली t -2 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ से t कितना आ गया? नो 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 मंथन, आंसर इज रॉन्ग. t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -3/2. t तो -1 to 1 होना चाहिए. सॉरी 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 सॉरी, -1 to 1 नहीं, साइन इनवर्स की रेंज -1 to 1 नहीं होगी ना, -π/2 से π/2 होगी. ओके, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी. साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स की रेंज होगी वही टी की रेंज होगी. तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज, है ना. नाउ टेल मी, t इज इक्वल टू 2 एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, t तो -π/2 से π/2, मतलब रफली यू कैन से दैट रफली टी इनवर्स कहां से कहां तक होगा, -1.57 समथिंग से लेके +1.57 समथिंग, है ना, 3.14 समथिंग, बस उसको किया. सो इट मीन्स दिस विल रिजेक्टेड, है ना, आउट ऑफ रेंज है. तो ये कितना है, t इज इक्वल टू -1.5. तो -1.5 तो गिवन रेंज के अंदर है. यस और नो? यस, वन सॉल्यूशन एग्जैक्टली. तो इट इंप्लाइज t इज इक्वल टू -3/2 इज द आंसर. ओके, यही आंसर है. इज दैट क्लियर? तो उसने तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, तो कितना है, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन. और अगर कोई सॉल्यूशन ही पूछे कि व्हाट इज दैट सॉल्यूशन, तो क्या होगा वो सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -3/2. तो x कितना होगा, बताओ x कितना होगा, कौन बताएगा? साइन ऑफ -3/2. ओके, विच इज -sin3/2. साइन -x कितना होता है, -sin. तो यही वो सॉल्यूशन है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें आंसर आ रहा है. इज दैट क्लियर गाइस? बट क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली काउंट करके बता सकते हैं. तो वन सॉल्यूशन है आंसर. इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. क्लियर है एवरीबॉडी? Shall I proceed further? Okay, very good, Swastik, very good. Okay, again solve this question. Very easy question. Again, you have 1 minute. Let me write down this question again. Very good, Manthan, very good. Question क्या बोल रहा है? सबसे पहले for x less than -1, solve cos inverse x² -1 upon x² plus 1 plus sin inverse 2x upon 1 plus x² minus tan inverse 2x upon x² minus 1 is equal to π/3. So this is the equation. Okay, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, that's it, for x less than -1 के लिए. That's all. Solve it. You have only 1 minute, guys. क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी से. अब याद आ रहा है कि जो हमने आइडेंटिटीज, जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उनका यूज होगा यहाँ पे.
यस और नो? ओके, इसलिए वो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। ओके, सॉल्व इट, लेट मी नो द आंसर गाइस। जीवा, टेल मी द आंसर, व्हाट हैपेंड जीवा? Let me know the answer, guys. What is the answer? Question is very easy. Okay. देखो, सबसे पहले हमने जो सॉल्यूशन किया था लास्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज की थी, उस प्रॉपर्टीज के टर्म्स में लिखो पहले इसे, है ना? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमने जो आंसर निकाला था वो था cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? cos इनवर्स माइनस ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये लिखा हुआ है टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, सो विच हमने जो प्रॉपर्टी करी थी वो था टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर विच इज पाई बाय थ्री। दैट्स व्हाट इज cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एलिफेंट, पाई माइनस cos इनवर्स एलिफेंट। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? पाई माइनस cos इनवर्स। देखो, प्रॉपर्टीज का यूज है, इसलिए मैंने बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज में ओनली प्रॉपर्टीज ही है। अगर किसी को प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर है ना, तो उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है पूरा का पूरा। ओके, नाउ प्लस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज टेन इनवर्स माइनस एलिफेंट? माइनस टाइम्स टेन, माइनस टाइम टेन इनवर्स एलिफेंट, यही होता है ना। तो टेन इनवर्स माइनस समथिंग माइनस टाइम्स, एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। ओके, आगे कैसे करेंगे? देखो, पाई माइनस, टेल मी व्हाट इज कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कल ही प्रॉपर्टी में बताया था, फॉर एक्स लेस देन माइनस वन, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है टू टेन इनवर्स एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। और हमें एक्स लेस देन माइनस वन में चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना होगा? माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। सबको समझ में आ रहा है? ओके, टेल मी व्हाट इज साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन माइनस वन। प्रॉपर्टीज रिवाइज करो अच्छे से, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इट इज नथिंग बट माइनस टाइम, व्हाट वाज दैट? माइनस टाइम, कोई बताएगा मुझे? क्विकली लेट मी नो द आंसर। पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, यही था ना? आई थिंक पाई माइनस टाइम पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स था। ओके, माइनस टाइम्स पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स। और ये कितना था? टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन माइनस वन। मैंने बोला था जो साइन इनवर्स के लिए है उसका नेगेटिव कर दो आप, तो इट इज एज इट इज प्लस पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय थ्री। क्विकली लेट मी नो, कितने लोगों को क्लियर है? गाइस क्विकली आंसर मी इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? तो कल जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसका दिख रहा है ना? दिस इज हाउ वी यूज द प्रॉपर्टीज गाइस। ओके, इज दैट क्लियर? अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो इसमें काफी कंफ्यूजन होने वाला है आपको। आई होप आई एम क्लियर। किसी को कोई डाउट है? जीवा गाइस क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, डू यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो फार? ओके, प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। ओके, नाउ गाइस अब तो ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि क्या लिखा है ये? इट इज नथिंग बट पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स एंड दिस इज पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एंड प्लस पाई टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया, विच इज नथिंग बट पाई बाय थ्री। तो इफेक्टिवली टू टेन इनवर्स एक्स कितना आ गया? टू टेन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट माइनस टू पाई बाय थ्री। तो टेन इनवर्स एक्स कितना आ गया? टेन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय थ्री। एक्स कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय थ्री, so x is minus root 3, so this is our answer.
इज दैट क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। इज दैट क्लियर गाइस? डू यू गाइस हैव एनी डाउट? अरे बोलो, सबको समझ में आ गया? मंथन, ये प्रॉपर्टीज याद है या नहीं है? प्रॉपर्टीज याद करो। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिटवीन -1 and 1 to tan inverse x between if x less than -1 pi plus 2 tan inverse x, x greater than 1 के लिए pi minus 2 tan inverse x. ओके, यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। वेरी गुड स्वास्तिक, वेरी गुड मंथन। ओके, देखो अदरवाइज अगर किसी को प्रॉपर्टी याद नहीं होती फिर क्या करता वो, उसको x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके दोबारा करना पड़ता। कॉस के लिए मैंने बताया था दैट, हाँ देखो सबसे पहले यहां पे मैं बताता हूं। देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2 tan इनवर्स एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रिएट करो, तो उसके लिए माइनस कॉमन ले लिया। कॉस इनवर्स माइनस एलिफेंट क्या होता है? माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एलिफेंट। So now this is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square and x less than -1, तो कितना होगा? -2 tan inverse x। क्लियर है स्वास्तिक? इज दैट क्लियर? आई होप स्वास्तिक दिस इज क्लियर टू यू। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके चलो, इफ इट इज क्लियर तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। I'm giving you 30 seconds, guys. You have only 30 seconds. Question is very easy. Quickly let me know the answer in the chat box. Answer बताना इसका. Quickly, everyone. Solve it and let me know the answer in the chat box. You have only 30 seconds. Tell me the answer, guys. What is the answer? Y is equal to log 2 tan inverse x to the base 2 greater than 1. तो देखो इसमें क्या है? इनइक्वालिटी आ रही है। Yes or no? तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अगर मानो इनइक्वालिटी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डोमेन चेक करो। लॉग के आगे tan इनवर्स x लिखा है तो tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। यस और नो? tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स x पॉजिटिव होना चाहिए, तो इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? ये तो डोमेन आ गई। अगर कोई डोमेन पूछता तो ऐसे ही बताते हैं। नाउ गाइस ये लिखा हुआ है log 2 tan इनवर्स x, सॉरी log tan इनवर्स x to the base 2 greater than 1. ओके, देखो this base is greater than 1, so if you take this base on the right hand side तो sign of inequality will not change। ये तो सबको पता है ना। so tan inverse x and this will becomes 2 raised to the power 1, but since the base is greater than 1 then sign of inequality will not change, it is as it is greater than। finally tan inverse x कितना आ गया? 2। so tan inverse x is greater than 2। is this possible कि tan inverse x greater than 2 हो जाए? tan inverse x की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, मैक्सिमम से मैक्सिमम π/2 को अप्रोच कर सकता है, मींस +1.27। तो ये तो 2 से भी बड़ा बोल रहा है, which is rejected, so which it is not possible, so it implies इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। so it means x is equal to 5 is the solution। is that clear? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? tell me quickly in the chat box। समझ में आया कि इनइक्वालिटी भी होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम तरीके से करेंगे। जितने भी हमें इनइक्वालिटी के कंसेप्ट पता है उनको यूज करेंगे बस, और क्या। क्लियर है गाइस? ओके, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन चल करते हैं अगेन। चलो करो, यू हैव ओनली 1 मिनट गाइस। सॉल्व दिस। cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। सॉल्व करो। सॉल्व करने का कभी भी क्वेश्चन बोलता है ना सॉल्व इट, सॉल्व दिस, सॉल्व दैट, तो इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस केस में वेरिएबल क्या है? x है, तो वेरिएबल का आंसर बताना जस्ट। ओके, मींस फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस इज ट्रू, दैट्स ऑल।
क्विकली आंसर बताओ। आंसर। अच्छा, किसी को अगर कॉस इनवर्स का ग्राफ, वैसे तो सबको पता होना चाहिए, है ना। मैंने बोला हुआ है, ये ग्राफ वगैरह सब याद करो अच्छे से, बिना ग्राफ के कुछ भी नहीं होने वाला। कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ऑल द ग्राफ्स, देन यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। ये दो चीज पहले याद करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ओके। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है? इस टाइप का बनता है, ऐसा, है ना। दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज -1, एंड दिस इज, ये 0 है, दिस इज पाई, सो दिस इज पाई बाय 2। ओके, cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। ओके, सबसे पहले बताओ, cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डू यू एग्री विद मी और नॉट? डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, मीन्स if you go from left to right, means if you increase your x, the value of cos inverse will decrease, yes or no? If I increase my x, the value of cos inverse decrease. So since cos inverse x is a decreasing function, it implies on increasing value of x, value of cos inverse will decrease, yes or no? यही मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो ओके, सो इट मींस इफ cos इनवर्स, तो देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई बोल रहा है कि cos इनवर्स x1 ग्रेटर देन cos इनवर्स x2, मींस x1 के लिए वैल्यू ऑफ cos इनवर्स बड़ी है, x2 के लिए वैल्यू ऑफ cos इनवर्स छोटी है। तो डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो कि x को इंक्रीज कर रहे हैं तो cos इनवर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोगों को ये बात क्लियर है? अगर cos इनवर्स x1 ग्रेटर देन cos इनवर्स x2 है ना, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि x1 लेस देन x2 ही होगा, तभी पॉसिबल है। स्मॉल वैल्यू ऑफ x पे ही बड़ी वैल्यू ऑफ cos इनवर्स आ सकती है, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इज दैट क्लियर? तो सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? सो इफ cos inverse x is greater than cos inverse x square, so directly you can say that it is possible if x is less than x square, then only it is possible, yes or no? So finally क्या बोल सकते हो कि x square minus x is greater than 0, तो फैक्टराइजेशन कर लो, x into x minus 1 greater than 0, what are the critical point? 0 and 1, plus minus plus, we are interested in the positive region, so like that. So x कितना आ गया? x is from माइनस इंफिनिटी से 1, 0 सॉरी यूनियन 1 से इंफिनिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या था? cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। क्वेश्चन की डोमेन क्या है? मींस फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज डिफाइंड, पहले तो वो भी चेक करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से आंसर मान लो कोई एक आ गया x की वैल्यू, एंड फॉर दैट वैल्यूज ऑफ x द गिवन क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड, तो उस क्वेश्चन उस वैल्यूज ऑफ x को कैसे कंसीडर कर लेंगे आंसर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टेल मी, यहाँ पे डोमेन क्या होगी x की? -1 to 1, जो cos इनवर्स की डोमेन होगी वही x की डोमेन होगी। दिस इज 1, दिस इज 2, ये डोमेन निकाल रहे हैं हम। आई होप दिस इज क्लियर। सो फाइनली आंसर क्या होगा? कॉमन वैल्यू ऑफ x विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो x क्या है? फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, तो फाइनली x कितना आ गया? x बिलोंगिंग टू -1 से 0, दैट इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर गाइस? ओके ओके, वेरी गुड। सो इफ इट इज क्लियर, so that's all for today everyone. Solve this question in your homework, okay? This question you have to solve in your homework. This question please solve it in your homework, okay? These are your homework problems. Try करना, easy questions, okay?
This is also a homework question. Solve it. We'll discuss this in the next class. Okay. This one more homework problem. Okay. I'm giving you 4-5 questions as a homework. So try to solve it. I will discuss in the next class. And this one problem. This is the problem of summation of the series. This is very important question. Okay. So that's all for today, everyone. Okay. We'll meet in the next class. And in tomorrow's class, first we will solve the homework question and then we will solve some previous year questions. Okay. Then tomorrow we will bind up our discussion on the inverse trigonometric function. Okay. That's all for today, everyone. Bye, everyone. Take care. I'll see you in the next class. Bye, everyone. Take care, guys.